Measurement of matter is a crucial topic in the Class 9 Maharashtra State Board syllabus of science. It encompasses various concepts that aid in understanding the properties of matter at the atomic and molecular level. Atomic mass refers to the mass of an individual atom and is measured in atomic mass units, AMU. On the other hand, atomic number signifies the number of protons present in an atom's nucleus. Formula mass is the sum of the atomic masses of all the atoms within a chemical formula. It helps in determining the relative mass of a compound. Formula weight is the average mass of a formula unit in a compound, and it is measured in atomic mass units, AMU. It aids in calculating stoichiometry and determining the quantity of substances in a reaction. The mole concept is a central concept in measurement. IT defines the amount of a substance that contains as many entities, atoms, molecules, or ions, as there are atoms in exactly 12 grams of carbon-12. The Avogadro's number is a fundamental value that represents the number of entities in 1 mole of a substance. Gram atomic mass is the mass of 1 mole of an element expressed in grams. IT aids in measuring the quantity of an element in a reaction or compound. By comprehending these concepts, students can gain a deeper understanding of the measurement of matter and apply this knowledge to various scientific applications in the future. ओके, मेजरमेंट ऑफ मैटर में बच्चा बाड़ी क्या है, हम यहाँ पे मैटर को मेजर करते हैं. सो देर आर सर्टन वेज इन विच वी बेसिकली मेजर मैटर. आप लोगों को भी ये चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपने पढ़े हुए हैं. थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये चैप्टर मैंने कवर कराया, आप फिर से मेरे से करवा रहे हैं. ये चैप्टर हो चुका है मेरा, यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली हो चुका है, ठीक है. ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? साइंटिस्ट स्टडीड द चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज यूज्ड and formed during chemical reactions and discovered the law of chemical combination. On the basis of Dalton's atomic theory and laws of chemical combination, scientists could then write molecular formula of various compounds. तो law of chemical combination क्या है आपका? पहला लॉ है law of conservation of matter, दूसरा लॉ है law of constant proportions, ठीक है. तो law of conservation of matter क्या करता है भाई साहब, ठीक है. law of conservation of matter, भौमिक, this pertains to you as well. ये चैप्टर आपको है मैटर एंड सराउंडिंग्स में. फर्स्ट लॉ, तो ये आपके एंटोनियो लॉवेसियर ने ये लॉ प्रपोज किया था. इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो अगर समझ लो भाई साहब, दो रिएक्टेंट्स है, वेरिफिकेशन समझ लो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है 1 और 2, रिएक्टेंट्स का मास कितना आया 74, तो वही आपका प्रोडक्ट का मास भी होगा, ठीक है. मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये आपका भाई साहब लॉ है, ठीक है. सो व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है. Law of conservation of matter that states that the total mass of the reactants will be equal to total mass of the products. तो यहाँ पे reactants का मास आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा अगर आपने गैसेस को एस्केप करने नहीं दिया तो, ठीक है. इफ यू हैव नॉट अलाउड द गैसेस, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, अगर रिएक्टेंट्स को हम एस्केप ना करने दें, if reactants are not allowed to escape the site of reaction, if reactants are not allowed to escape the site of reaction, then हम यहाँ पे बोल सकते हैं total mass of reactants is equal to total mass of products. तो आपका भाई साहब total mass of reactants is equal to total mass of products, और यही है आपका भाई साहब क्या, law of conservation of matter. तो law of conservation of matter which means what? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही भाई साहब मैटर का क्रिएशन हो सकता है, नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, नॉर डिस्ट्रॉय. तो ना ही इसका क्रिएशन हो सकता है, ना ही डिस्ट्रक्शन होगा. अगर कोई गैस साइट को एस्केप कर जाता है तो ये मास वेरीफाई नहीं होगा. गैसेस कैन नॉट बी अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन, ओनली देन दिस लॉ कैन बी वेरीफाइड. तभी जाकर इस लॉ का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं. रिएक्शन बिटवीन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना है भाई साहब आपका 74 ग्राम, ठीक है. तो आपका यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है. व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड बच्चा बाड़ी? ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये H2O है. ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज गोइंग टू मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे ये 56 ग्राम है, यहाँ पे ये कितना है भाई साहब आपका 18 ग्राम है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये अपने को क्या मिल रहा है 74 ग्राम है.
तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाट इज प्रूव्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, बहुत जोर का रिएक्शन होता है, प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड एंड द कोनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट। कैल्शियम ऑक्साइड कुछ नहीं है, वही है जो आप लगाते हो, क्या, चूना। ठीक है, हाँ चूना ही है, ये जो आपके दीवारों में पोता जाता है ये क्या है, चूना ही तो है। तो चूना जब पानी में आप डालते हैं तो एक जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं बेसिकली उनके हाथ बहुत रफ हो जाते हैं क्योंकि उनको चूने को पहले घोलना पड़ता है। ठीक है, जनरली आज की तारीख में तो ग्लव्स वगैरह पहन के करते हैं। ठीक है, तो चूने के साथ जब आप पानी को घोलते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है क्योंकि बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका हीट प्रोड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर आप पान खाते होंगे, नहीं खाते, ट्राई कीजिए भाई साहब चूना लगाकर। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा पान खाते हैं और चूने का इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे उनके टेस्ट बड्स खराब होने लगते हैं क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा होता है और इस चूने के साथ सलाइवा का कांस्टेंट रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो आपका ज़बान जो है या जो माउथ है वो हमेशा गर्म रहेगा और गर्मी में ये टेस्ट बड्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो आपको जो टेस्ट आता है खाने में, जो रेगुलर पान खाने वाला होगा, ठीक है, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा और इसीलिए वो और ज़्यादा पान खाएगा। ठीक है, जो रेगुलर पान खाते हैं उनको धीरे धीरे खाने में टेस्ट नहीं आता है क्योंकि उनके टेस्ट बड्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ठीक है, बहुत सालों से जो लोग कंटिन्यूसली चूना लगाकर पान खा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, उनका माउथ का सलाइवा रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। जो चूना देता है पान वाला वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें हीट जनरेट होता है। ये हीट जब जनरेट होता है तो वो टेस्ट बड्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और यही है कि मतलब पहले जो इंसान 2 या 3 पान खाता रहेगा वो उसका और बढ़ाता रहेगा, 5 खाएगा, 10 खाएगा, ऐसा होगा क्योंकि अभी उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, अभी उसको भाई साहब खाने में टेस्ट नहीं आ रहा तो अभी पान में टेस्ट लेगा वो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और विगरसली विथ वाटर, विगरसली मतलब बहुत जोर से रिएक्शन होता है। जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं उन लोग पहले चूने को घोलते हैं और उसमें भाई साहब पेंटिंग का कोई रंग मिलाते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, जो जिस शेड का आपको चाहिए कलर वो मिलाते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड एंड द कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स वेरी हॉट। ये बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स वेरी हॉट। द मास ऑफ द सब्सटेंस फाउंड विल बी 74 ग्राम्स। मैटर इज नीदर गेन नॉर लॉस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ना ही मैटर भाई साहब गेन होता है और ना ही लॉस होता है। आपने देखा A + B ने क्या बनाया C, बट मैटर इज कंजर्व। देयर इज नो लॉस ऑफ मास इन दिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये आपका हो गया भाई साहब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आपने देखो सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को, ये अभी क्यों आता है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे देखो कितना है 300.23 है इसका मास। बहुत जरूरी बात यह है कि आपका यहाँ पे जो आपको स्टॉपर दिख रहा है देखो, ठीक है, यू कैन सी अ स्टॉपर आउट हियर। ये स्टॉपर भाई साहब गैसेस को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इसको उलट पुलट कर दिया। ये कुछ नहीं है, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है ना ये वही है, यहाँ पे यही होता है। ठीक है, खैर तो इसको आपने उलट पुलट कर दिया। उलट पुलट कर दिया मतलब ये मिक्स हो गया। उलट पुलट कर दिया मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बाहर नहीं जा पाएंगे। सो दीज आर नॉट अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी होता है व्हेन प्रोडक्ट्स भाई साहब प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड to escape the site of reaction, products are not allowed to escape the site of reaction। अभी जैसे समझो आपका भाई साहब Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, इसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड का। तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, ठीक है, NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस प्लस कैल्शियम सल्फेट। देखो यहां पे बोल रहे ना कैल्शियम सल्फेट इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके भाई साहब क्या रिएक्टेंट्स, ये हो गया भाई साहब आपके क्या प्रोडक्ट्स। आपको यहां पे दिखेगा कि रिएक्टेंट्स का मास अगर 300.23 है तो प्रोडक्ट्स का मास भी 300.23 है। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द मास, सो मास रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, मास भाई साहब आपका क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, mass remains conserved, so there is no change in the mass through the entire reaction. If the products are not allowed to escape the site of reaction, then the total mass of the reactants will always be equal to the total mass of the products. अभी आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे A + B था जो आपका क्या बन गया C + D, ये सब डिफरेंट है।
ए बी सी डी सब डिफरेंट है, लेकिन जब इनका मास हम करेंगे तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज ए प्लस बी विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज सी प्लस डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। सो कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, जरा इसका अंदर लेंगे पाए भरा के भाई साहब, चकना उकना मंगाया जाए, नहीं माहौल बना है भाई साहब, है ना। Calcium chloride reacts with sodium sulfate to form a white precipitate of calcium sulfate. The mass of the conical flask before and after the reactions will be the same. तो यहाँ पे हम क्या conclude कर सकते हैं? In a chemical reaction, the total mass of the reactants is same as the total mass of the products formed due to the chemical reaction. Thus, the chemical reaction follows the law of conservation of matter. तो law of conservation of matter को भाई साहब ये follow करता है। Law of constant proportion क्या होता है? It was proposed by J.J. Proust, ठीक है? The proportion by weight of the constituent element in various samples of compound is fixed. अभी जैसे समझो आपका एक कंपाउंड आपने ले लिया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर, ठीक है, H2O, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आप देखोगे यहाँ पे 2:2 किसका है? 16 का प्रोपोर्शन है, ठीक है, 2:16, तो दैट इज 1:8। तो जब भी आप कहीं से भी वाटर का प्योर सैंपल लाएंगे, ठीक है, नदी नाले भाई साहब आपका सी कुछ भी, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, वेल, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर इफ यू कलेक्ट वाटर इट विल ऑलवेज शो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ये भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा 1:8 रेशियो में ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब समुद्र का पानी अगर प्योर फॉर्मेट में आप ला रहे हैं तो वहां पे भाई साहब 1:16 हो जाएगा या 2:4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल ऑलवेज शो द सेम रेशियो। इनफैक्ट थोड़े से रेशियो के बिगड़ने से कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका H2O है, यहां पे आपका रेशियो कितना दिख रहा है? 1:8। एक और कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पे रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? 2, और यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2 एटम्स के कितने हो जाएंगे? 2 × 16 दैट इज 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रेशियो? 1:16, ठीक है। वाटर जो आपके लिए लाइफ है एंड यू कैन नॉट स्टे विदाउट इट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पॉइजन। ये भाई साहब पॉइजनस है, ठीक है। मैं तो दाढ़ी सफ़ेद ही रखता हूँ, लेकिन जो लोग अपना दाढ़ी को डाई करते हैं, दाढ़ी मूंछ डाई करते हैं, जो आपके यहाँ पे जाते हैं, क्या कहते हैं, सलून वगैरह में जाकर, ठीक है, तो सलून में जो लोग ये करते हैं उनके लिए वो बोलते हैं कि भाई साहब मुंह मत खोलिएगा, ठीक है, जब तक हम इसको पूरा वॉश ना कर दें तब तक मुंह मत खोलिएगा। क्यों? क्योंकि उस डाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके लिए फेटल हो सकता है, एक पॉइजन हो सकता है। तो आप देखिए H2O वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, मतलब H2O2 हो गया। एक हमारे लिए लाइफ है और एक हमारे लिए डेथ है, ठीक है, एक हमारे लिए लाइफ है, दूसरा हमारे लिए पॉइजन है। वन इज बेसिकली लाइफ फॉर अस। ये क्या पेन का क्या खाना नहीं मिलता है क्या घर में? हाँ, दातुन बना दिया तुमने उसका, ब्रश करते हो क्या उससे? ठीक है, H2O ये हो गया आपका H2O2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आप देखो जैसे इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग सब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, ओके, आर वी डाइंग आउट ऑफ इट? नो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है हीट को ट्रैप करना, तो ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तो वी विल ऑल डाई, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आपके ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है, ये उसका काम है, ठीक है। हमारा ब्लड जो है वो पूरा ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके सारे सेल्स में पहुंचाता है, ठीक है। हर सेल को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। नाक आपके पास एक ही है, तो क्या इतने सारे नाक होने चाहिए? पॉसिबल नहीं है भाई साहब। तो हर सेल में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड, ठीक है। और ब्लड क्यों पहुंचा पाता है? क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। दिस इज एबल टू कैरी द ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। ये ऑक्सीजन पहुंचाता है हर एक पार्ट में, ठीक है, ओके। नाउ अगर ये भाई साहब हेमोग्लोबिन के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है उसके एनवायरनमेंट में, तो ये ऑक्सीजन को भूल जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये 400 गुना ज्यादा कंबाइन करेगा, 400 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी टेंडेंसी 400 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो भाई साहब ऑक्सीजन, अगर हेमोग्लोबिन को ये चॉइस मिले कि भाई साहब तुम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये इसको भूल ही जाएगा भाई साहब, क्योंकि इसके साथ इसकी कंबाइनिंग टेंडेंसी 400 टाइम्स मोर।
because of which what will happen, hemoglobin will start combining with the carbon monoxide which is present around us and हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाएंगे एंड वी विल ऑल बेसिकली डाई, ठीक है। नहीं समझ रहा है ना भाई साहब, ठीक है। वी विल ऑल डाई, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो ये जैसे अगर आप देखोगे कभी कभी गाड़ियों में ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई ड्राइवर भाई साहब है वो एसी चलाकर सो गया और अक्सर ऐसा होता है कि दैट पर्सन माइट डाई। व्हाई? बिकॉज आपके एसी में ऐसे कॉपर पाइप्स होते हैं और कभी कभी इनमें लीकेज होता है। इन कॉपर पाइप्स में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेसिकली अ कूलिंग एजेंट, ठीक है। वहां पे कूलिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है, कूलिंग पाइप्स होते हैं। कभी कभी अगर लीकेज हो गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता रहेगा। अभी क्योंकि गाड़ी के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं जा सकता। तो जब ये इंसान सोया हुआ है तब इसके हेमोग्लोबिन में या ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको होश ही नहीं है। फाइनली सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे एंड दैट पर्सन विल डाई, ठीक है। सो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप देखो, कहने का मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन होके एक गैस बनती है, लीथल गैस विच कैन बी फेटल एंड कॉज ऑफ डेथ, और दूसरा गैस हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है। इट विल नॉट बी अ कॉज ऑफ डेथ, इट कैन बी अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। और ये इसको तो यूज करते हैं प्लांट्स टू इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? द प्रोपोर्शन बाय वेट of the constituent elements in various samples of a compound is pretty much fixed. Example, the proportion of mass of hydrogen and oxygen in water, ठीक है, is 1:8। आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर, अभी ये वाटर कहीं से भी लाओ, ठीक है, आप वेल से लाओ, स्ट्रीम से लाओ, लेक से लाओ, पॉन्ड से लाओ, सी से लाओ, ओशन से लाओ, wherever you are bringing this water from, it will always show a combination of 1:8 between hydrogen and oxygen, ठीक है, क्लियर है? ओके। Verification of the law, the copper oxide can be obtained by decomposition of CuCO3, ठीक है, decomposition of copper nitrate। अभी देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, देखो, ठीक है, CuO है। अभी समझ लो कॉपर कार्बोनेट है, ये CuCO3 है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट है। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट ये बना रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक और सोर्स आपका क्या हो जाएगा? CuNO3। इसको भी जब आप हीट करेंगे तो ये भी बनाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका NO2 प्लस NO3, ये सब बनाएगा भाई साहब, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि कॉपर ऑक्साइड, एक कॉपर ऑक्साइड आया आपके डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट से, इसको आपने हीट किया है, और एक कॉपर ऑक्साइड आया भाई साहब डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट से, इसको भी आपने हीट किया है। लेकिन जब आप इस कॉपर ऑक्साइड को देखेंगे, खंगालेंगे, तो आपको दिखेगा कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, दैट इज कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर को अपन Cu लिख रहे हैं और ऑक्सीजन को O, ठीक है। तो कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज या रेशियो है, ठीक है, दोनों भी कंपाउंड्स में सेम होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, वाटर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, wherever it is bought from, if it happens to be pure, the ratio of hydrogen and oxygen you will always get it as 1:8। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड, one copper oxide sample is obtained by heating copper carbonate, the other copper oxide sample is obtained by heating copper nitrate। Both these copper oxide samples contain the same percentage of copper and oxygen, ठीक है। So the proportion in which copper and oxygen are combining to form this compound, that is copper oxide, is the same। तो इसका मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो है तो सेम ही रहता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विल ऑलवेज कंबाइन इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, डैश, हम जिससे पूछूंगा वही बताएगा। डैश ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट? 18, गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। आपका देखो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई साहब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपके क्या क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने ग्राम का? 2 ग्राम का। ऑक्सीजन कितने ग्राम का? 16 ग्राम का। तो आपका वाटर कितने ग्राम का फॉर्म होगा? 18 ग्राम का, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 18। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, ये कितना हो जाएगा? 1:8। बट ओके, इसमें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
चलिए यहां पे देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास देखो, कार्बन CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं हम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो यहां पे 2 एटम है तो 2 × 16, समझ में आ रहा है ये, तो ये 12:2, ये कितना हो जाएगा 32, समझ में आ रहा है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, 12:32। तो अभी आप 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 3 = 12, 4 8 = 32, तो आपका कितना हो जाएगा 3:8, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भाई साहब यहां पे यही पूछा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 3:8। हाँ, एटॉमिक मास कैसे दिया रहेगा सवाल में, लेकिन कुछ चीजों के एटॉमिक मास आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे भाई साहब अगर मैं बोलूं सो इस क्वेश्चन इज कि एटॉमिक मास आपने जो लिया वो हमको कैसे मालूम रहेगा, ज्यादा करके सवाल में दिया होना चाहिए, अगर नहीं भी दिया है कुछ चीजों के एटॉमिक मास आपको मालूम होने चाहिए, चाहे तो लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। जैसे अगर आप देखोगे जो बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है भाई साहब 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है भाई साहब आपका 16, सल्फर का एटॉमिक मास है भाई साहब आपका 32, ठीक है, सल्फर तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, और क्या हो गया भाई साहब, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, और क्या हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक मास है भाई साहब 40, सोडियम का एटॉमिक मास है भाई साहब 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, ज्यादा करके ये दिया रहेगा आपको सवालों में, ठीक है, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ये याद रखो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, ये काफी है आपके लिए, बाकी के दिया रहेगा आपको, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का याद रखिए, ये काफी है आपके लिए फिलहाल तो, ठीक है, ओके। State whether the given statement is true or false. According to Dalton's atomic theory, matter is made up of very tiny, indestructible, indivisible particles called atoms. Is it true or false? तो true है, लेकिन अपने आप में ये थ्योरी थोड़ा सा फॉल्स है, क्योंकि आज की तारीख में हमको मालूम है कि भाई साहब ये, हाँ अभी भी एटम्स तो हैं, सारे एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं, लेकिन अभी हम इनडिविजिबल नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि एटम में आपको अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, एटम इज नाउ डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज की तारीख में ये आपका अभी सही नहीं है, हाँ, लेकिन सारे एलिमेंट्स एटम से बनते हैं ये जरूर सही है, ठीक है, बट एटम इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट राइट। तो डाल्टन की जो थियरी थी वो 100 साल तक चली, और डाल्टन भाई साहब बहुत मतलब ही डिडंट डू एनी एक्सपेरिमेंट्स, उनका ये मानना था कि भाई साहब किसी चीज को डिवाइड करते 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 आप एक लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे, वो जो लास्ट स्टेज है वो होता है उसका एटम, ठीक है, विच वाज करेक्ट, ठीक है, बट उनके पोस्टुलेट्स में बहुत सारी गलतियां भी थी बाद में जो रेक्टिफाई हुई, लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस तरह से सोचा कि भाई साहब एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इज इट ट्रू? यस, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये ट्रू है, ठीक है, ओके। एटम साइज एंड मास, तो आपका देखो एटम इस तरीके का होता है कि आपका ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में बच्चा पार्टी क्या होता है, इस न्यूक्लियस में होते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स आपके होते हैं भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आपके होंगे पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आपके क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, दे विल बी न्यूट्रल। इसका भाई साहब एक क्लस्टर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आजू बाजू घूमते हैं, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में हमेशा सेम होंगे, the total number of protons and the number of electrons will be same, and that's what makes an atom as neutral. यही भाई साहब किसी एटम को न्यूट्रल बनाता है। Are we clear on this one people? हम समझ में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है भाई साहब, ठीक है। आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, size of an atom, atomic radius is distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो रेडियस बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जनरली एटॉमिक रेडियस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। आर वी क्लियर, ठीक है। सो साइज ऑफ एन एटम दैट इज एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। It's expressed in units in nanometer. 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter, ठीक है।
बहुत ही छोटा होता है एक एटम, इसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ एटम्स को आप देख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट विजिबल जनरली, ठीक है, एटम्स को आप नहीं देख सकते, ठीक है। ओके, एटम साइज एंड मास, कंपेयरिंग एटॉमिक साइज ऑफ डिफरेंट एटम्स, द एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द एटम, ठीक है, जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे उतना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा। तो आपके ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, देखो के एल एम ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आप देखो जैसे समझ लो मैं यहाँ पे सोडियम का ले रहा हूँ एटम, ठीक है, तो सोडियम में कैसा है 1123, ये इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में आएंगे 8 और तीसरे ऑर्बिट में आएंगे 1, ठीक है। तो सोडियम का एटम हो गया जिसमें आपके 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, 23 - 11 कर दोगे तो ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया आपका एटॉमिक मास, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। जब भी आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हो तो आपका आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Whenever you subtract atomic number from atomic mass, you get the number of neutrons। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो एक किसी एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, देखो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने हो गए भाई साहब, 12। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अभी देखो पहला शेल आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन का, दूसरा शेल आ गया भाई साहब आपका 8 इलेक्ट्रॉन का, और तीसरा शेल आ गया भाई साहब आपका कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 2, 8 और 1, ठीक है। तो अभी आप देखोगे अगर पोटेशियम में एक शेल और ज्यादा है, तो पोटेशियम का कैसा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक शेल ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे भाई साहब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भाई साहब क्या होता जाएगा, एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, the atom having the larger number of electrons in the outermost orbit is smaller, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का क्या है, देखो ये इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके दूसरे ऑर्बिट में भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम। मैग्नीशियम में भाई साहब क्या है, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी इस चीज को समझिए, ठीक है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 11, तो यहां पे आपका 11 पॉजिटिव चार्ज, यहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, 8 और 2, 12, ठीक है। तो यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 12। किसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के पास, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है। देखो ऑन कंपेयरिंग एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो सोडियम और पोटेशियम में भाई साहब सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, सॉरी अपना सोडियम और मैग्नीशियम में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। द एटम हैविंग लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज स्मॉलर, तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से स्मॉलर होगा, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज मैग्नीशियम हैज गॉट greater number of electrons, the more is the number of electrons, thus more will be the stronger force experienced by these electrons, hence the size of magnesium will be lesser than that of sodium, ठीक है। okay, example, an atom of Mg is smaller than an atom of sodium। mass of an atom, mass of an atom भाई साहब atomic mass क्या होता है, number of protons plus number of neutrons, protons and neutrons are together also known as nucleons। एक सेल में होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई साहब, ठीक है। एज एन एटम इज वेरी टाइनी, रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड, और रेफरेंस एटम हमारा क्या है, देखो रेफरेंस एटम को समझो, ठीक है। अभी आप अगर कुछ खरीदने जाते हो किसी किराने की दुकान पे, ठीक है, तो समझ लो 1 किलो शक्कर लिया आपने, तो 1 किलो शक्कर को आप कैसे मेजर करते हो, हाउ विल यू, तो भाई साहब प्लास्टिक में या जो भी है उसमें भरता है और दूसरे बट्टे पे आपका 1 किलो रखता है। अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई हैं, लेकिन पहले तराजू देखा होगा आपने, 1 किलो का लोहे का बट्टा रखेगा और यहाँ पे चीनी रखेगा, शक्कर रखेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये 1 किलो क्यों बोल रहे हैं शक्कर को, क्योंकि इसका जो मास है और 1 किलो के लोहे का मास सेम है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, 1 किलो शक्कर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 किलो शक्कर में जितनी क्वांटिटी आती है
उस 1 किलो मास लोहे में भी उतनी क्वांटिटी आती है। तो हमारा रेफरेंस किससे है, हमारा कंपैरिजन किससे है, लोहे से, ठीक है, लोहे से। सो लोहा हमारे लिए क्या हो गया भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। द आयरन इज बेसिकली अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसी तरह से जब हम एटॉमिक मास करते हैं तो हमने कार्बन एटम को लिया हुआ है, ठीक है। कार्बन एटम एज एन एटम इज वेरी टाइनी, रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड, और इसीलिए हमने रेफरेंस एटम किसको लिया हुआ है, पहले हमने हाइड्रोजन को लिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को जब ले रहे थे तो काफी एटम्स जो तो फ्रैक्शनल मासेस शो कर रहे थे, जिसके वजह से अभी हमने क्या लिया हुआ है, कार्बन। तो जैसे मैंने आपको तराजू बताया, देखो एक कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आप शक्कर को तोड़ रहे हैं तो आपने लोहे के बट्टे के साथ शक्कर के वेट को या मास को कंपेयर किया हुआ है, इसी तरह से यहां पे कार्बन के साथ सारे एटम्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो अदर रेफरेंस एटम वाज एक्सेप्टेड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज की तारीख में जिस चीज से हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, विच इज आल्सो नोन एज AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एक एटॉमिक मास, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। केमिकल सिंबल्स ऑफ एटम्स, डाल्टन ने जब सिंबल्स यूज किए थे तो बड़े ही रॉ टाइप के सिंबल्स थे, जैसे कॉपर के लिए इन्होंने ऐसे यूज किया, हाइड्रोजन के लिए ऐसे यूज किया, ठीक है। टुडे वी यूज सिंबल्स डिटरमिन्ड बाय IUPAC। IUPAC बेसिकली क्या है, एक बॉडी है जो केमिस्ट्री को डिफाइन करती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। सो IUPAC बेसिकली होता क्या है, देखो समझ लो अगर मैं रशिया में रहता हूं और कोई इंग्लैंड में रहता है, वो बोल रहा है मैं कॉपर को, भाई साहब कॉपर को, तो मैं यहाँ पे कॉपर को क्या जानता हूं, तांबा, है ना, तो मैंने भाई साहब कॉपर को T लिख दिया, ठीक है। रशिया का आदमी भाई साहब कॉपर को C लिख रहा है, तो ये क्या होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो इसीलिए इन डिसएग्रीमेंट्स को अवॉइड करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको IUPAC बोलते हैं। इसने कुछ नियम निर्धारित किए कि कैसे हम सिंबल से एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट आर द सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। सो वो सिंबल्स सारे पूरे वर्ल्ड में फॉलो होंगे। तो अगर मैं भाई साहब यहाँ पे इंडिया में लिख रहा हूं कि कॉपर को Cu, ठीक है, तो रशिया में भी Cu ही लिखा जाएगा, ब्रिटेन में भी Cu ही लिखा जाएगा, अमेरिका में भी Cu ही लिखा जाएगा। इस Cu को देखकर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है कि दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कॉपर एट एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट से हम लोग सब बाइंड है, ठीक है, क्लियर है। तो नामकरण जो है वो इन्होंने डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल्स, इट वाज इन्वेंटेड बाय बर्जीलियस, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड लेटर स्पेसिफिक लेटर टू द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे कार्बन को C लिखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई साहब C से बिलोंग करता है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम को भी हमने C लिख दिया होता तो कार्बन और कैल्शियम में कंफ्यूजन हो गया होता, इसीलिए हमने सेकंड लेटर को भी इसमें चूज किया है, और सेकंड लेटर को हम हमेशा छोटा ही लिखेंगे, इट विल बी ऑलवेज स्मॉल केस, ठीक है। तो कैल्शियम को भाई साहब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, we will not write calcium as Ca, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब, it will be written as Ca, क्लियर है, ओके। सो दिस इज कैल्शियम। इसी तरह से कैडमियम, देखो अभी अगर कैडमियम की जगह पे Ca नहीं लिख सकते, फिर तो कैल्शियम के साथ इसका कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, Cd, तो हमने सेकंड लेटर को चूज किया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मोनो एटॉमिक, तो सोडियम को Na क्यों बोलते हैं, सोडियम में तो S आना चाहिए ना भाई साहब, सोडियम को Na क्यों बोल रहे हैं, लैटिन नेम, गुड, ठीक है। तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है भाई साहब, आपका नाट्रियम, ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है। कभी कभी हमने लैटिन नेम यूज किया है क्योंकि S से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सल्फर है भाई साहब, सेलेनियम है, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने लैटिन नेम को ले लिया। यहाँ पे लैटिन एक लैंग्वेज है और उसके हिसाब से ये हो जाएगा Na, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मोनोएटॉमिक, ठीक है, मतलब आपके एग्जांपल नियॉन, हीलियम, ये सब जो हैं ये इनर्ट गैसेस हैं, ये अकेले में रहते हैं, ठीक है, ये किसी के साथ कंबाइन भी नहीं करते हैं क्योंकि इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो फिल्ड है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जैसे 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 भाई साहब आप यहाँ पे जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ चल रहे हैं, इन दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ है।
हाइड्रोजन को लिखते हैं आप H2, मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब टू और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे आपका ओजोन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस, ओके। एग्जांपल्स O2 and N2 आर डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, ठीक है। डाइएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स। कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे आपका H2 है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। CO2 है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। H2SO4 हो गया, HSO 3 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो आपका कंपाउंड कब बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से बनता है। इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। जैसे देखो NaCl, यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, तो 2 एलिमेंट्स हैं। MgCl2 मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। The relative atomic mass of one nitrogen atom compared to the hydrogen atom is how much? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन का 1। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना भारी हुआ, 14 टाइम्स भारी हुआ, ठीक है। सो इट विल बी 14, ठीक है, दिस विल बी 14, ओके। स्टेट वेयर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। An atom of magnesium is smaller than an atom of sodium having the same outermost orbit। अभी हमने पढ़ा, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? अब भी तो मैंने समझाया, ट्रू है भाई साहब। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे भाई साहब, मैग्नीशियम आपका यहां पे मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये आपका सोडियम। इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका पॉजिटिव चार्ज कितना 12, इसका पॉजिटिव चार्ज कितना 11। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा पुल करेगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कम पुल करेगा, तो इसका साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। सो एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन एन एटम ऑफ सोडियम हैविंग द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। व्हाट वुड बी द रीजन? द एटॉमिक चार्ज हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट, कौन होगा भाई साहब? नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट, इट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, ओके। कंप्लीट द एनालॉजी। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl, तो सिलिकॉन को क्या लिखेंगे? Si, ठीक है। S कैपिटल में होगा, I स्मॉल में होगा, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन डाल्टन। स्टेप टू रिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, जैसे H2SO4 है, देखो, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? अभी देखो यहां पे हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, सल्फर का एटॉमिक मास क्या है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। तो यहां पे कंपाउंड आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 × 1 हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर के आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं? 1, तो 1 × 32 ये हो गया सल्फर का, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं? 4, तो 4 × 16 ये हो गया ऑक्सीजन का। तो 2 + 32 + 64 दैट विल बी हाउ मच? 98। ये हो जाएगा भाई साहब आपका 98 एटॉमिक मास यूनिट। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? H2SO4। तो हाइड्रोजन देखो कितना है 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 1 × 2 तो ये हो गया 2। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, कितने एटम्स हैं 1, तो यहाँ पे हो गया 32 × 1 दैट इज 32। ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे हो गया 16 × 4 दैट इज 64, ठीक है। तो आपका 98 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। मोल भाई साहब क्या होता है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं इसको आसान किए देता हूं, ठीक है। जैसे समझो अगर मैं बोलूं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, इसको हम म्यू लिखते हैं, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 12 म्यू। इसी को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 ग्राम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, और यही ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो? 12 ग्राम, सिंपल,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं भाई साहब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 म्यू, ठीक है, तो इसी को हम पहले क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 ग्राम्स हो गया, 16 म्यू को 16 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम बोलेंगे अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स बोल दूं तो अगर भाई साहब एक मॉलिक्यूल में देखो, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितने एटम्स होंगे, 2 दिख रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है। एक का मास कितना है 16 म्यू, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 म्यू, दैट इज 32 म्यू, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहां पे बोलेंगे भाई साहब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो 1 मोल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 म्यू। कैसे आया ये 18 म्यू भाई साहब, हाउ इज इट कमिंग, क्योंकि आप देखो यहां पे H2O है, ठीक है, सो H2O 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये हो गया 2 प्लस 16 दैट इज 18 म्यू, ठीक है। इसी को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो आपका भाई साहब यहां पे 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो गया 18 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, द एसआई यूनिट इज मोल। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है भाई साहब, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मैजिकल नंबर है, ठीक है। सो 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस Na इज हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे भाई साहब 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम्स, चलिए 1 मोल ऑफ एटम्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब 1 मोल ऑफ आयंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा दिस नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, वही 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स। बेसिकली 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एनीथिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स। So 18 grams of water contains 6.022 into 10⁻23 molecules of water. Okay, so आपका mass of a substance divide by molecular mass multiplied by, ये हो गया आपका number of moles multiplied by Avogadro's number of molecules divide by Avogadro's number, तो ये हो गया आपका number of moles, ठीक है। Okay, चलिए भाई साहब, state whether the given statement is true or false. Unit of molecular mass is Dalton. क्या ये true है या false है, जल्दी 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 भाई साहब, true है ना भाई साहब। म्यू जो आप लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ CO2 गैस कितना होगा, राइट, मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ CO2 गैस इज हाउ मच 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो दिस विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। न्यूमेरिकल सेक्शन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3। कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट से बताइए, K2CO3 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो K2 मतलब आपका हो गया 2 इंटू 39 प्लस कार्बन, भाई साहब कार्बन कितना है 1, और इसका एटॉमिक मास कितना है 12। देखो ऐसे एटॉमिक मास दिया जाएगा आपको जो मैं बोल रहा था, ठीक है। प्लस 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 यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, सो ये हो गया आपका 78 प्लस 12 प्लस 48, तो यहां पे हो गया आपका कितना 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 7 प्लस 1 8, 1 9, 9 प्लस 4 13, 138 एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एक मोल, तभी इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास में, तो ये हो गया आपका 138 ग्राम्स, ठीक है। ओके 138 एटॉमिक मास यूनिट, देखो समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। फटाफट करना है भाई साहब, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अभी देखो यहां पे आपका वाटर का अगर एटॉमिक मास निकल, पहले तो देखो वाटर का क्या हो जाएगा H2O है, तो जैसे मैंने आपको बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका याद रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे 1 इंटू कितने एटम्स है 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस यहाँ पे कितने एटम्स है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 18 म्यू,
इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो 18 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास में जब आप कन्वर्ट करते हो यही 1 मोल का मास है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं 1 मोल, या हम बोल सकते हैं भाई साहब हाँ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इसका मास कितना हो गया 18 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे भाई साहब, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने। तो अगर 36 ग्राम करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट विल बी हाउ मच, 2 2 4 हो गया भाई साहब, 2 2 4 0 और 6 2 12 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी टेकन। 0.2 आपका भाई साहब कितने मोल्स की जरूरत है, देखो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी टेकन 0.2 moles of magnesium oxide are required, how many grams of magnesium oxide should be taken। ये क्या क्वेश्चन हो गया भाई साहब, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। ओके चलिए, तो यहां पे देखो 0.2 मोल्स चाहिए, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है भाई साहब, इसका एटॉमिक मास है, दिया नहीं हुआ है यहां पे, इसका एटॉमिक मास है भाई साहब 16, इसका एटॉमिक मास है 24। टाइम पास चालू है तेरा, इसका एटॉमिक मास है 24, इसका एटॉमिक मास है 16, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 24 म्यू प्लस 16 म्यू, सो दैट विल बी हाउ मच, प्लस 6 10 2 + 1 3 1 4 40 म्यू, ठीक है। इसको करो कन्वर्ट किसमें, ग्राम एटॉमिक मास में, तो ये हो गया 40 ग्राम्स, और ये हो जाएगा भाई साहब 1 मोल का मास, दिस इज बेसिकली 1 मोल का मास, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कितना ग्राम्स हो जाएगा बोलो 40 ग्राम्स, है कि नहीं, ठीक है। तो 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.2, दैट इज 80, और यहां पे एक पॉइंट में गया भाई साहब, ठीक है। सो 8 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तेरा भाई साहब 8 ग्राम्स हो गया यहां पे, 8 ग्राम्स। वैलेंसी एंड रेडिकल्स, तो वैलेंसी भाई साहब द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है भाई साहब, और इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। ओके, सो यहां पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट देता है या एक्सेप्ट करता है उसको अपन बोलते हैं वैलेंसी, टू एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन, वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, जैसे आप देखो यहां पे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा भाई साहब, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जैसे ही दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, 2 8 और 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अभी दोनों के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 और 8, सो इट इज बेसिकली एक्वायरिंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, अ सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, chlorine accepts 1 electron, the valency of chlorine is 1, a chlorine atom takes up 1 electron and forms an ion of chlorine, the valency of chlorine is 1, both the resulting ions आपके भाई साहब एक complete octet बना देंगे due to the attraction between the unit opposite charges। तो आपका भाई साहब देखो आयनिक कंपाउंड बन रहा है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाने से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आने से एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट ऑपोजिट चार्जेस ऑन द टू आयंस, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एंड द आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई साहब, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल देखो बोरॉन है, एक एटम है जिसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं 3, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 3, सो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 3, वैलेंसी ऑफ बोरॉन हो जाएगा 3। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आयरन, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट take up or give away different number of electrons under different conditions,
तो जैसे आयरन की दो वैलेंसीज मिलती है, एक है 2 और एक है 3, ठीक है। आयरन इज एन एलिमेंट, ठीक है। कॉपर इज एन एलिमेंट, कॉपर की भी 1 और 2 वैलेंसी होती है। आयरन तो कॉपर की एक वैलेंसी होती है 1 और दूसरी वैलेंसी होती है 2, सो इट इज बेसिकली एन एलिमेंट विच शोज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिकल्स, ओके। टू constituents, cations and anions of a compound with ionic bonds can take part independently in chemical reactions called as radicals. The magnitude of charge is basically आपका रेडिकल हो जाएगा। जैसे कटायनिक रेडिकल्स, कटायनिक रेडिकल्स कौन होते हैं, जिनमें भाई साहब आपका क्या हो, देखिए जैसे समझ लो कटायनिक रेडिकल है, ये हो गया आपका Na+, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं कटायनिक रेडिकल, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं अनायनिक रेडिकल। तो कटायनिक और अनायनिक रेडिकल से क्या बनेगा भाई साहब, आपका एक बेस बन जाएगा, ठीक है। तो कटायनिक रेडिकल जिसको हम बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज बेसिक रेडिकल्स फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ मेटल्स। सो अनायनिक रेडिकल्स कौन होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। तो आपका यहाँ पे जैसे H+ और Cl-, ये आपका अनायनिक रेडिकल है, इट फॉर्म्स एन एसिड। तो आपके कटायनिक रेडिकल्स क्या बनाएंगे, बेस, और अनायनिक रेडिकल्स क्या बनाएंगे, एसिड्स। बेस और एसिड्स होते क्या हैं, जिसमें OH कंपोनेंट होता है वो आपका भाई साहब हो गया बेस, और जिसमें H कंपोनेंट होता है वो हो जाएगा आपका एसिड। सो जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका हो गया एसिड, ठीक है। फॉर्म बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स बेस्ड ऑन एटम्स, तो जिसको जैसे मोनो एटॉमिक रेडिकल कैरिंग चार्ज, Fe2+ हो गया, ठीक है, Br- हो गया। एग्जांपल कंपोजिट रेडिकल्स, मतलब यहाँ पे मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम से बने हुए, जैसे यहाँ पे जो Fe2+ बना है ये एक रेडिकल है क्योंकि इस पे चार्ज है, लेकिन सिर्फ आयरन का ही है। यहाँ पे ब्रोमीन है, एक ही एलिमेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है जिसपे प्लस चार्ज है। यहाँ पे नाइट्रेट आयन है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जिसपे माइनस चार्ज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट रेडिकल्स। इनको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल रेडिकल्स। सिंपल रेडिकल्स एक ही एटम से, एक ही आयन से बने होते हैं, ठीक है, ओके। केमिकल फॉर्मूला, स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। तो भाई साहब जैसे समझ लो Na है, सोडियम का भाई साहब 1 है। सिंपल रेडिकल्स नहीं समझा, सिंपल रेडिकल्स मतलब जैसे देखो यहां पे कोई एक एटम है, उस एक एटम से जो रेडिकल बनता है, जैसे यहां पे आयरन है 2+, यहां पे तुमको और कोई एलिमेंट दिख रहा है, इसको भूल जाओ, कोई और एलिमेंट दिख रहा है नहीं। तो सिंपल रेडिकल मतलब चार्ज बना है प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन एक ही एटम से बना है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल रेडिकल बोल रहे हैं। जैसे यहां पे ब्रोमीन एटम है, ब्रोमीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है कहीं से, तो इसीलिए Br- बन गया है, ठीक है। तो रेडिकल तो बन गया ही है, लेकिन एक ही एलिमेंट से बना है, इसीलिए हम इसको सिंपल बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट अब कब बोलेंगे, जब चार्ज हो और जहां पे जो कंपाउंड है वो दो एलिमेंट से बना है। जैसे यहां पे तुमको नाइट्रोजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो इसीलिए इट इज अ कॉम्पोजिट रेडिकल। रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस का चार्ज है। कॉम्पोजिट रेडिकल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। रेडिकल मीन्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज कैन बी ऑन अ सिंगल एलिमेंट which basically makes a simple radical, or the positive or negative charge can be on a combination of elements। जब combination of elements में होता है तो उसको हम composite radical बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनियम आयन है, ठीक है, नाइट्रेट आयन, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसके मत्थे भाई साहब एक नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, तो दिस विल बी अ कॉम्पोजिट रेडिकल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है भाई साहब 2, ठीक है। तो सोडियम के नीचे हम लिखेंगे 1 और यहां पे, और इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड विल बी Na2SO4, ठीक है। राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड विल बी Na2SO4। इसी को अपन क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। दैट्स हाउ वी राइट, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाक से बोलना है। अरे कार्बन भाई साहब, मैंने बोला आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का याद रखना। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को सजाइए, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, 4। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 2 and 4 दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द बेसिक रेडिकल एंड द एसिडिक रेडिकल इन कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में बेसिक रेडिकल कौन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और एसिडिक रेडिकल कौन हो जाएगा भाई साहब, आपका क्लोरीन, ठीक है। सो विच वन विल दिस बी, Cu2+ एंड Cl-। एवरी एलिमेंट हैज अ फिक्स्ड वैलेंसी। क्या ये सही है, नहीं, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है। जैसे कॉपर का वेरिएबल वैलेंसी है, 1 और 2 दो भी दिखाता है।
आयरन का भी वेरिएबल वैलेंसी है 2 and 3, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है। डिफरेंट बेसिस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द एसिडिक रेडिकल्स इन देम, ठीक है, सो ये फॉल्स बाय द बेसिक रेडिकल्स इन देम, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? तो भाई साहब मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है भाई साहब? मैग्नीशियम का वैलेंसी है यहाँ पे 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा MgCl2, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? फटाफट बताइए भाई साहब। यहां पे नाइट्रोजन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने दिख रहे हैं? 5। क्या 1 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने हैं तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करेगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वही इसकी वैलेंसी बन जाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गिव्स और एक्सेप्ट्स टू फॉर्म अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 का 8 बनाने के लिए इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइंड द ऑड वन आउट। Ag प्लस K प्लस NH4 प्लस Cu प्लस। NH4 क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का रेडिकल हो गया? कॉम्पोजिट रेडिकल। ये बाकी सब क्या है भाई साहब? आपके सिंपल रेडिकल्स, ठीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके भाई साहब, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चैप्टर एट अ ग्लांस हो गया ये, ठीक है। सो दैट बेसिकली मोर और लेस कंप्लीट्स द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।